alaikum, everybody. This is Sayyada Fatma Ishtiaq. I'm here with you guys with another exciting episode of Spotlight. Today, we have with us another very young, talented, and a very dynamic personality. He has an experience of more than 18 years in tech outsourcing and global growth consulting. He is a former VP Global Marketing and Sales at IBEX, and now he is the CEO of Talent Mind. And he and his firm has been providing outsourcing solutions to startups as well as seasoned enterprises, consulting, guiding them for expanding businesses into markets like Middle East, Europe, Australia, and USA, to name a few. He's also very active on media, and where he mentors thousands of students and individuals with the knowledge he has gained over the years. We're very lucky to have Mr. Naveed Ilyas here on the show with us as and also as a faculty here at IOBM. Thank you so much, Naveed, for coming to the show. Thank you. My pleasure. Finally, we get to meet. And Finally. Thank you so much once again. I know you had a very busy schedule, but this is, I'm really glad that you could take out time. Thank you so much. It's always a pleasure. Thank you. Naveed, itni sari achievements within such a short span of time, mashallah. Tell us about your journey. चलें, let's start off with my journey. So, कहाँ से start करें? Let's think. Let's start off with बिल्कुल starting से करते हैं ना, because I think that's going to make it very interesting. Exactly. And why I would want to do it, because I am a firm believer of the fact कि यार हर चीज़ जो होती है ना वो puzzle की तरह पहले से बनी हुई होती है, and you're just joining those puzzles and you're like find okay यार this is how things are working out. So starting off, lots of ups and downs like anyone else. Very, very, very humble background. Born and raised in Karachi शुरू से. उसके बाद grade 7th, grade 8th तक I was in Karachi again. Till then, very humble background, and one fine day we find out that we're moving to Oman. Okay. So Oman चले गए. Oman गए तो everything changed. Then उसके एक साल बाद we found out, oh, we are moving to the US. Oh, great. Okay. So 9th, 10th, 11th, 12th, which is like prime high school time. We went and amazing life. अच्छा शुरू से ना मुझे शौक था कि यार from day one I have to be the best. And again, I'm not saying I'm smart. What I'm saying is I try my best. तो यहाँ पर थे तो भी ऐसा ही था. उसके बाद ओमान गए तो everything changed. But as long as it's growth, you like it. ओमान से यूएस गए 9th 10th एक और ग्रोथ. हमने कहा यार this is amazing, loving it. 9th हुआ, 10th हुआ, 11th grade, which is and then the seniors in high school, brand new गाड़ी ले ली, सब कुछ कर लिया. जल्दी ले ली. सब कुछ कर लिया. At that time $4,000-5,000, everything fine. But one fine day मेरे काउंसलर ने मुझे बुलाया और उसने कहा what happened? I was like what? इसने कहा 2 जहाज थे जो बिल्डिंग से टकरा गए, हमें नहीं पता क्या हुआ है. So make sure everything is fine. That was 911. ठीक है जी. अच्छा अब everything changed, and people are like पता नहीं क्या हो रहा है and all that. अच्छा फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, and that happened. उसके 1-1.5 साल बाद मैं graduate हुआ था. So I graduated in 2003. ठीक है. 4.0 GPA, summa cum laude, high university, and Texas का rule था, if you are in top 10, oh, you can go to any university, all fine. Then we found out we have to go back. Oh. ठीक है जी. What timing. ठीक है भाई वापस आ जाएंगे, अब क्या करेंगे, because at that time it was difficult कि आप उसके बाद status change करवा लें. तो हमने कहा भाई ऐसे तो रहना नहीं है. So we came back to Karachi. Okay. Things suddenly changed. Okay. From a brand new car to बस के धक्के. Okay. अच्छा एक और चलो, ये तो कोई मसला नहीं है. वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा एक्सपीरियंस करके आने के बाद वापस. वो कहते हैं नेमतों का ज़वाल झेलना ज़्यादा मुश्किल है. आपको ना मिले ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता. बिल्कुल पता नहीं. खैर ये हो गया. फिर हम लोग गए, हमने कहा चलो यार अब क्या करते हैं, there is nothing to lose. But when I came to Karachi, I found out कि सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं. Because I graduated on I think जून का फर्स्ट वीक था 2003. ठीक है, तो तब तक तो सब एडमिशंस हो गए होंगे. उसके बाद जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन थी उससे अगले दिन हमारी फ्लाइट थी बैक टू पाकिस्तान. ओके. अब यहाँ आए तो जी एडमिशन तो सारे ख़त्म हो गए. सही. अब लोगों ने कहा यार, एंड दैट वाज अ गुड लर्निंग फॉर मी, लोगों ने कहा यार पता है, और उस वक्त उम्र भी 16-17 साल की होती है यार, यू डोंट नो
यार पता है सबसे ज़्यादा पैसा सीए करने में है, तो बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। ओके, हमने कहा अच्छा यार दैट्स अ सही गुड है, थिंग, सही लेट्स है। जस्ट डू दैट। सही है। अच्छा हमने और दैट वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। वी Okay. गॉट एन एडमिशन, एक सेमेस्टर हुआ, मैंने कहा यार ये तो मेरे बस की बस बात काम नहीं है, नहीं, सही। यू नो आई एम नॉट दैट गाय, सही। इवन दो एवरीवन लव्ड मी। जिस स्कूल से ड्रॉप किया ना मैंने, सही। सीए का वन बेस्ट स्कूल इन कराची, सही। जाके उसमें पढ़ाया बाद में मैंने, अच्छा, सही है। राइट, बट वो ड्रॉप कर दिया। Okay. अच्छा अब ड्रॉप कर दिया, अब क्या करें? नहीं, अब ड्रॉप कर दिया तो हमने कहा बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इज द ओनली ऑप्शन दैट सही। यू हैव, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है। और कहीं और जाए तो लोग पूछेंगे यार तुमने साइंस में किया कॉमर्स में किया, हमने कहा हाई स्कूल तो जनरल होते हैं। सही है। खैर वो सारी चीज़ें स्टोरी हो गई। फिर क्या करें, हालात ख़राब हुए, हमने कहा एक काम करते हैं अब कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। ओह अच्छा, ओके। अब दैट वाज द गुड थिंग एंड आई वुड लव टू कनेक्टेड विद व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ओके, उसी वक्त टीआरजी ग्रुप पाकिस्तान आया, सही है। वो बड़े बड़े अखबार में ऐड ये वो कि यू नो एट दैट टाइम MBAs used to make 20 to 25,000 rupees a month. बिल्कुल सही। TRG used to pay 40,000 rupees a month ओके, सही है। to someone who's a high school graduate, ठीक है, who is not even who's doing bachelor's, that's fine. सही। बट प्रॉब्लम ये है कि यार 6 to 3 की जॉब रात, होगी हाँ। या 9 to 5 होगा, बट वो 9 to 5 रात को 9 से सुबह 9 से 5 सुबह होगा। 5, सही है, ठीक है। या मैंने कहा यार अब क्या करें, कुछ और करने को तो है नहीं। सही। एंड एट दैट एज वी वेंट देयर, आई वाज लाइक चलो यार लेट्स डू इट। ठीक है। गए इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यार यू आर द परफेक्ट 4.0 फिट फॉर वाले दैट। को तो क्यों नहीं बुलाएंगे? वो उन्होंने कहा यार एज लॉन्ग एज यू कैन स्पीक एंड यू Speak, कैन हाँ, ब्रीथ, सही। दैट्स ऑल वी नीड। ठीक है। एंड इफ यू आर, अच्छा वहाँ जाके मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी की सीखी जो मुझे आज तक याद आती हैं। अच्छा, पहला लेक्चर, एंड आई ऑलवेज टेल एवरीवन, try to build silos in your life, सही, because that was a pure customer service job. I was working for Volkswagen. सही है। No matter whatever happening is life, when you are at work, you're at work. हम्म, Your problems, your situation should not impact your work, and the other way around. ट्रू, बिल्कुल। Second, the importance of time management. अगर 9:01 पे पहुंचे और 2 बार लगातार पहुंचे तो तीसरी बार अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ट्रू, सो दैट वाज वन थिंग। खैर वो 1-1.5 साल किया, फिर CBA में एडमिशन हो गया। सही है, मैंने कहा चलो यार एटलीस्ट ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो गई। सही है। CBA में एडमिशन के फर्स्ट सेमेस्टर में साथ वो चलाया, बिकॉज आई वाज लाइक यार इतने पैसे हो जाएं कि मैं 2 साल MBA के पैसे दे दूँ, इसके बाद वी विल फाइन, विल बी फाइन, विल बी ओके एंड ऑल दैट। सही, अच्छा वो हो गया। अब क्या हुआ, MBA में एडमिशन हुआ मैंने। अच्छा एक और चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, दैट वाज कि नेवर एवर रूइन योर रिलेशनशिप्स इन लाइफ। ठीक, So I had amazing relationship with my supervisors, with my managers, with everyone around. ठीक है, सही है। ये भी हो गया। फिर हमने MBA में एडमिशन लिया। अब MBA अगेन आदत ये थी यार सबसे अच्छा करना है, सबसे हाँ, अच्छा सही करना है। है। I was famous. I I can was relate to getting an this. A. सही, Still I was requesting a teacher, can I sit again in your class for the next semester? He was like यार पागल वागल हो गए हो, क्या हो गया? नहीं ऐसे ऐसे ही ही, without it, अच्छा। without registration. अच्छा, सही I don't know if I should say this. नहीं, But खैर, नहीं, नहीं, and it is teachers very were inspiring kind actually. enough. अच्छा, Teachers they were used to let you kind sit. enough. They were like हाँ बैठ जाओ यार, बट हमने पहली बार देखा है और आखिरी हाँ। बार देखा है कि कोई बैठ रहा है। हाँ, सही बात है। अब वो छोड़ दिया, MBA कर लिया, MBA कंप्लीट हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ द मार्केटिंग सोसाइटी बन गए। अच्छा, उस वक्त एक लम्स के अंदर कंपटीशन हुआ था जो आई थिंक पहली और आखिरी बार लम्स में हुआ था, विच वाज काइंड ऑफ अ ग्लोबल कंपटीशन, और Okay. उसमें वी गॉट द फर्स्ट प्राइज। ओके, माशाल्लाह। उस वक्त के 5 लाख रुपए इनाम था, तो इट वाज अ बिग थिंग, यू नो। ओके, 5 लाख और रुपए, लम्स में ठीक है। बुला के वो स्टैनफोर्ड के लोग और हार्वर्ड के लोग, एंड दे वर यू नो ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक यार दिस इज लाइफ मैन, दिस इज गुड। हाँ, सही, अच्छा फिर ये भी हो गया। रिलेशनशिप यहाँ भी बहुत अच्छे, हर एक ठीक से, है, सही है। गालिब साहब से लेके मिस सबीना मोहसिन हो गई, मिस शनाज मेघानी उसमें हेड ऑफ सही है। मार्केटिंग थी, अखलाक साहब थे वो विजिटिंग फैकल्टी थे उस बिल्कुल सही, ठीक वक्त। है। सो दैट वाज द टाइम व्हिच वाज देयर। ओके, अब उन्होंने कहा यार तुम जहाँ भी जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, हाँ, तुम्हें कोई ना ले, ऐसे हो ही नहीं सकता। सही है। अब मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, हाँ। और ऐसा ही हुआ। अच्छा, मेरा ख्वाब लाइक एनी अदर MBA कि यार अब तो एक अच्छी FMCG हाँ, कंपनी में FMCG चले जाएंगे जाएंगे और सुकून करेंगे, और हाँ, ब्रांड मैनेजर सेट बनेंगे होंगे, जी, और बस ये करेंगे। बिल्कुल, हाँ। हर कंपनी में गया, आखिरी इंटरव्यू में रह गया। रियली? ठीक है, एंड आई एम प्राउड टू से दिस। बिलीव एक्चुअली। अच्छा, फिर? एंड वो कहते हैं ना अल्लाह ने आपके लिए कुछ और लिखा हाँ, था ये, और आपको ये, शायद पता नहीं था। ये, अब मेरे लिए स्पेशली फ़ोन किया गया कि यार आप प्लीज़ दोबारा एवेल्यूएट कर ले, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट खैर, एंड दे वर फाइन। आई थिंक अब इफ आई लुक बैक नाउ, सो आई थिंक मे बी आई वाज नॉट मेड फॉर दैट। ठीक, सही,
बट मैंने कहा करना तो है यार, करना ठीक तो है, है। करना तो है. माई फर्स्ट जॉब वॉज एट BASF Chemicals, ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केमिकल कंपनी. ठीक आई है। वाज द मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग. ओके, मैंने कहा यार चलो ठीक है, कोई बात बट यू नहीं. स्टिल गॉट द ड्रीम जॉब ना, वो तो Oh yeah, हाँ, yeah, सही it was fine. ठीक, बट उधर एक प्रॉब्लम मुझे ये था कि यार इट वाज टेक्सटाइल पिगमेंट्स एंड अच्छा। उसकी B2B मार्केटिंग. सो understanding the chemical ठीक है, industry is something सही। which is difficult, but I was loving it. ठीक है, Then I got an opportunity from packages. ओके, सही अब है। packages, rose petal and all these बिल्कुल। tissues. और हमने कहा यार अब क्या करें. मैंने कहा यार this is something good. ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ I also joined CBM as a visiting faculty, but ठीक। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा Okay, because सही that है, will be हाँ। the part of the story. We have Yeah. another question as well. So अभी अगर हम जॉब की बात करें तो पैकेजेस, कराची की सेल्स मैनेजमेंट, ओ मैंने कहा यार बैक टू FMCG. सही। अब देखो यार क्या सही। करता हूँ मैं. ठीक है जी. 1.5-2 साल हुए, मुझे एक आउट ऑफ द ब्लू फोन आता है फ्रॉम अ गाय एंड आई रियली 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 रिस्पेक्ट हिम, कॉल्ड अदनान अस्तर. ओके, सही, And he's like, Naveed, क्या हाल है? And I know, I think we met once or twice, and he called me in the office, and he was like, he was the CEO of Multinet Pakistan, and then Okay. obviously he has retired now, and he's not the CEO anymore, but he's managing the business. सही, उन्होंने कहा यार नवीद, I want to open my own FMCG कंपनी, और उसके अंदर कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स थे, कुछ चिप्स भी थे और इस तरह की चीज़ें भी थीं, and it is going to be something really different, and I want you to lead that. ओके, सही, अब मैंने कहा यार ख्वाब तो मैंने देखा था, और ख्वाब जो मैंने देखा था ना वो ये देखा था कि यार कुछ अपना करना है. सही है। फिर मैंने कहा यार ये अपना भी हो रहा है और FMCG भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, कंबाइन तो हो गया यार ख्वाब। कबूले बोल दो. ठीक है, सही है, ठीक, अब उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी, सही है। तो कोई सच प्रॉब्लम्स भी नहीं थे. टाइम मैनेजमेंट हाँ। का इतना मसला नहीं था, टाइम दिया जा सकता था काम Yes. को, सही। अच्छा, उन्होंने कहते हैं ना कभी कभी गरीब को फंसाना बहुत आसान होता है. हाँ। उन्होंने कहा यार एक काम करो, 3x ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग ले लो मुझसे. अच्छा, अब मैंने कहा यार 3x ऑफ व्हाटएवर मेकिंग उस वक्त तो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है ना यार. हाँ। 25,000 वाले को 75,000 बोलो तो वो बिल्कुल। उछल जाता है कि सही, दैट्स सो गुड. सही, एग्जैक्टली, हाँ, तो मैंने कहा यार बिस्मिल्लाह, लेट्स डू इट. ठीक है। You were at packages at that time. आई वाज एट पैकेजेस. पैकेजेस से गए मल्टीनेट. ठीक है, सही। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, पता चला जिस पार्टनर के साथ वो करना चाह रहे थे हाँ। वो पार्टनर बैक ऑफ हो गया. ओह, अब मैंने कहा यार पैकेजेस छोड़ के आ गया, अब मैं क्या करूं. सही है। He was like, but technology marketing is so cool. I was like, I have no idea what it is. सही, And I really don't know what it is. And I don't want to do what it is. So, खैर, फिर I became the head of marketing for Multinet. ओके, अब उस वक्त मुझे डेटा सेंटर क्या होता है नहीं पता था. मुझे नहीं पता था सॉफ्टवेयर क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है. और उस वक्त ना, it was a second tier industry. ठीक है, स्पेशली MBAs के लिए ना, अगर आप हाँ। स्मार्ट है ना तो FMCG, हाँ, बिल्कुल, या आप शेल टाइप हाँ, कंपनीज. बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को कोई पूछता भी नहीं पूछता था. नहीं, मैंने भी उसी टाइम में ही किया था, हाँ. छोड़ो यार। सो हमें छोड़ो यार, अब किसको क्या किस मुंह से हाँ। बताएं कि यार अब तो हमने डिसीजन ले लिए ले जो चुके हैं, हाँ। जो शायद. हाँ, फिर 1.5 साल 1.25 साल सब कुछ सीखा. ठीक है, MPLS क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक। वो ले कैसे होता है, वो डेटा क्या होता है. अब स्टोरी कनेक्ट होगी उससे जो मैंने कॉल सेंटर में काम किया था. ओके, ठीक, वन फाइन डे वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड ही इज लाइक यार TRG में काम करना है. मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, मतलब आई एम एन MBA एंड आई एम दिस एंड आई एम हाँ। दैट एंड आई एम हाँ। दिस. कह रहे नहीं समझ लो मेरी बात में. सही, कह रहे हम उस वक्त $20 मिलियन की कंपनी थे, आज $100 मिलियन की कंपनी हो गए हैं. ओके, और हम क्लाइंट्स लाइक एप्पल, गूगल, AT&T, Amazon, Western Union, Verizon, this is the kind of players we play with. ओके, And I'm not asking you to come and join us as a call center executive. I'm ठीक है. asking you to join us, come as someone who is in marketing. ओके, अच्छा, उस वक्त मैंने कहा एक काम करो यार, जॉब डिस्क्रिप्शन तो भेजो, फिर देखता हूँ मैं. उसने मुझे भेजी एंड यकीन मानिए, आई थॉट कि इट वाज रिटन फॉर मी ओनली. रियली, अच्छा, what they needed? They needed someone जिसने US में रहा हुआ you हो. were being prepared for this. Yes. जिसने US में काम किया हुआ हो, ठीक है, ठीक, जिसने US कल्चर का अंदाज़ा हो, ठीक है, जिसको कॉल सेंटर इंडस्ट्री का अंदाज़ा हो, yes. ओके, जिसको US कॉल सेंटर इंडस्ट्री में काम किया हुआ हो, yes. जिसको मार्केटिंग पता हो, वाह। जिसने MBA किया हुआ हो. वाह, मैंने कहा यार ये तो मतलब मेरा नाम नहीं लिखा, नाम बाकी तो भी सब लिखा कुछ हुआ, कर दिया. बाकी सब कुछ है, सही है. अच्छा, फिर
मशवरा करने की आदत उस वक्त भी थी. एंड अगेन दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन, स्पेशली ऑल द स्टूडेंट्स, ऑलवेज ट्राई, मेक श्योर, मशवरा करो, मशवरा करो, मशवरा करो. मुझे कैसे काम आया, मैं एक और, अब उस कंपनी में उस वक्त बहुत कम लोग थे, सारे अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए थे. उन्होंने मुझसे कहा यार तुम आ रहे हो, मैंने कहा यार आई एम थिंकिंग कि मैं जितना कमा रहा हूँ ना 1x मांगू. कह रहे 4x मांगना. अच्छा. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, नहीं मना कर दो वैसे ही. हाँ. कह रहे 4x मांगना. अच्छा. मैंने कहा ठीक है. इंटरव्यू हुआ, इट वेंट रियली गुड. ठीक है. अगेन शुरू से आदत है कि यार व्हाटएवर यू आर डूइंग मेक श्योर यू आर डूइंग द बेस्ट. ठीक है. सही. इंटरव्यू अच्छा हुआ. अच्छा वो कंपनी थी कि उस वक्त दे ओनली यूज्ड टू हायर फ्रॉम आईवी लीग स्कूल्स, चाहे जितने भी टॉप लेवल पोजीशन पे थे. हाँ, उन्होंने कहा अच्छा यार ठीक है. अच्छा, एंड दे वर सो इम्प्रेस्ड, मैंने जो मांगा उससे भी ऊपर ऑफर किया. वाह, awesome. अब मैंने कहा यार मैं 4 टाइम्स की बजाय जो है, मैं वो कोई 5-6 मांगी. वो इन्हें गरीब को फंसाना बहुत आसान है. मैंने कहा यार ठीक है, अब इसको मैं मना कैसे करूँ. प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि दोपहर 3 से 12 का टाइम था, बिकॉज वी हैड टीम्स इन पाकिस्तान, वी हैड टीम्स इन द फिलीपींस, वी हैड टीम्स इन द यूएस, वी हैड टीम्स इन कनाडा, सो एवरीवन हैड, you know, we had to interact with everyone. So they were like, yeah, let's have a hybrid team. However, you can always manage your time according to your convenience. Okay. That gave me another option. And I was like, यार ट्रेनिंग क्यों नहीं कराता मैं. अच्छा. तो क्योंकि सुबह तो टाइम होता है ट्रेनिंग के लिए. ट्रेनिंग always very selective. सोना भी होता है, खाना भी होता है. वो हम बाद में बात करेंगे. Okay. अच्छा, मैंने कहा यार ये अच्छा. अब ट्रेनिंग I was very selective. I just do 2 days, 3 days a month, 4 days a month, and I think I'm one of the most expensive trainers of Pakistan, and a consultant. I've worked with McKinsey as well. I've worked with you know, as a consultant obviously. So that was the start of this trajectory. हमने कहा यार टाइम तो है, सही, और बाकी कोई और शौक भी नहीं थे उस वक्त. ठीक है. That started. Okay. अच्छा, 1 महीना हुआ, मेरे बॉस ने रिजाइन करके फिलीपींस चला गया. नहीं, रिजाइन नहीं किया उसने, वो प्रमोट होके फिलीपींस चला गया. तो वो जगह खाली थी. हमने कहा यार ये क्या हुआ, अभी तो मैंने सीखा ही नहीं था कुछ और तुम चले गए. उसने कहा you know this is an opportunity for me, so I'm going, and he was again from the US and all that. मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें जी, क्या करें. TRG ने फिर डिसाइड किया कि भाई हमें अब NASDAQ में लिस्ट होना है. NASDAQ से पहले वो LSE में हुआ था, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में. तो उन्होंने कहा चूंकि अब तुम्हारे बॉस नहीं, अब तुम्हें मैनेज करना है. तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज रीब्रांडिंग TRG इनटू व्हाट पीपल नो एज IBEX टुडे. ओके, ठीक है. 6 महीने जान लगा दी. You know, work day and night, made sure this happens, from छोटे lanyard से लेके to the board से लेके to everything you can think about. और CBM साथ चल रहा था, but that was always on Sundays, so that was a different story altogether. वो चल रहा था. 6 महीने हुए. I get so Julie Castile was my manager at that time. She promoted me and I became the youngest director of TRG Group in 2013 या 14 कुछ इस तरह का था. So I was very young and I was the director, and everyone was like, तुमने क्या किया? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया यार. I just did what I had to do. I just guided in the right directions and I gave my best. And that was not the end. I was like, चलो यार, that's cool. And they were like, you know, if you want to do some training, that's fine, as long as it does not impact your work. मैंने कहा चलो अब तो green signal मिल गया. You know? Like it. So that trajectory went on and on and on, and then I implemented a lot of systems. I became director to senior director to vice president. और उसके बाद फिर एक दिन हुआ, मैंने कहा यार जिंदगी बहुत तेज जा रही है. अच्छा. Then all the leading Pakistani companies, software companies, tech companies, they used to approach me, sir 1 घंटा दे दें, sir 2 घंटा दे दें, we want to make this, we want to do this. Even today, आज भी 1 घंटे के बाद मुझे एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, IOBM में हमने बुला लिया हमने. तो उनके साथ मेरे 1 घंटे का सेशन है, बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ी एक्विजिशन की है एंड दे वांट टू मेक श्योर दैट द कल्चरल अलाइनमेंट इज देयर एंड ऑल. तो 2012 से लेके 2023 तक I was with IBEX. Okay. 11 years. ठीक है. Amazing experience. पूरी टीम बिल्ड कर ली, अल्लाह का शुक्र है. आज सब लोग मेरे फ़ोन पर हैं. If I call them right now, they would say, how can we help you? Okay, माशाल्लाह. So that was a good thing. But वो एक concept होता है ना कि finding keys in the wrong place. Which वो कहते हैं ना कि यार, let me in fact, हो सकता है शायद जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में ना आए. तो वो कहते हैं ना, हम एक जगह गए,
हम या आपके पास मैं आता हूँ, आप अपनी चाबियाँ ढूंढ रही हैं, मैं कहता हूँ यार लेट मी हेल्प यू एंड लेट मी हेल्प यू फाइंड द कीज। हम 10 मिनट हो गए, मैं कहता हूँ यार चाबियाँ नहीं है यहाँ पे, मुझे नजर नहीं आ रही। कह रही हाँ चाबियाँ तो वो उधर गिरी थी ना। तो मैंने कहा यार इधर क्यों ढूंढ रही थी? हाँ. मैंने कहा यार यहाँ पे इसलिए ढूंढ रही थी बिकॉज यहाँ रोशनी थी, वहाँ बहुत अंधेरा और खाई है, तो मैंने कहा हम गिर ना जाए तो यहीं ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे शख्स को हर कोई क्या कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा कि यार व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, वो उधर गिरी है तुम इधर ढूंढ रहे हो। बट बहुत बार जिंदगी में हम यही कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही. हम उस जगह सोल्यूशन को तलाश कर रहे होते हैं जो शायद हमारे पास वहाँ नहीं था। होता ही नहीं है, बिल्कुल. So you had to go to the right place, your root cause, and that's where you need to be. अब सबसे बड़ा मसला ये होता है ना कि यार या तो you have nothing to lose, तो फिर तो that's the best thing हाँ, in life. बिल्कुल, फिर तो I आगे was तो consulting one guy and he was going through a tough time. I was like, you know, सबसे best चीज़ क्या होती है when you have nothing to lose. मेरा प्रॉब्लम ये था, I had a lot to lose. Lot to lose, सही. Right? और वो रॉक बॉटम पे जब तो फिर आपने ऊपर ही उठना होता है, या तो उसके नीचे करने जाना गया होता फिर है या आपने। उसके ऊपर उठना होता है. तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं? अब ऑप्शन था, I was like यार if not you then who, and if not now then when. ठीक है. एंड उस वक्त वो मोटिवेशनल कोट्स बड़े जहन में आ रहे ठीक है. होते हैं, और इंस्टाग्राम खोलो तो उसका हाँ. भी एल्गोरिथम ऐसा ही है कि वो बिल्कुल, आपने वही दो आता है सर्च कर बार-बार, लिए तो वो हाँ. 2000 बार वही बिल्कुल, दिखाएगा। बिल्कुल. आई वाज लाइक यार क्या करूं? फिर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा, उसने कहा यार मुझे ये बताओ, डू यू ट्रस्ट योरसेल्फ? मैंने कहा आई थिंक सो, यू नो. ठीक है. उसने कहा डू यू थिंक कंपनीज आर सो स्टूपिड दैट इफ दे आर पेइंग यू ABC अमाउंट they are not getting more value than what you are getting from them? मैंने कहा यार ये बात भी जायज़ बनती है, you know, for profit organization things like that. बिल्कुल. उसने कहा तीसरी एक बात बताओ मुझे कि अल्लाह ना करे अगर तुम चले भी जाते हो, do you think तुम्हारा इमेज इतना ख़राब है कि तुम एक बार फ़ोन करोगे तुम्हें वापस नहीं बुला लेंगे? सही है. जैसे चौथा सवाल, अगर तुम आज छोड़ देते हो और लेट्स अज्यूम 2 साल तक तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता, क्या तुम सरवाइव कर सकते हो? मैंने कहा कर सकता हूँ. सही है. तो फिर उसने कहा सोचने की क्या बात है इसमें? ओके. And one thing that changed my life, and that was, उसने मुझसे एक सवाल पूछा, उसने कहा कि यार, मैंने कहा चलो कूद जाऊँ, करे कूद नहीं जाओ, आगे बढ़ जाओ. सही. And that changed the perspective. ठीक है. And I'm like, okay. कूदना अलग है और आगे बढ़ना अलग है. अच्छा मैं अपने आप को ना बड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग समझता हूँ. ठीक है. Maybe I am, maybe I'm not, but I think यार कुछ भी हो जाए ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा माशाल्लाह. You know, या इतने अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं. For that as well. I do training on, Okay. yeah. सही. बट मुझे नहीं, मतलब आप गुस्सा नहीं दिला सकते. अच्छा. मुझे गुस्सा करना होगा मैं खुद करूंगा, आप नहीं करा अच्छा. सकते. आप मुझे खुश नहीं कर सकते, मुझे खुश होना होगा मैं खुश हो जाऊंगा. या ठीक है. आप मुझे नहीं रुला सकते. Okay. राइट. बट अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है. बट आई थिंक दैट इज माई स्ट्रेंथ. This is what I guess everybody is striving for. Seriously. हमारी बेगम हमें पत्थर बोलती हैं. हाँ, ये बेगमों की ये चीज नहीं पसंद आती वैसे. You're right. तो एनीवे वी कम बैक टू दिस. आई वाज लाइक यार दिस इज समथिंग गुड. बट वो दिन था, मुझे रेजिग्नेशन ईमेल लिखने में मेरे हाथ जिस तरह से हिल रहे थे मुझे पता है. मैं सेंड नहीं कर पाया उस दिन उस ईमेल को. मैंने लैपटॉप बंद कर दिया. The VP working there for more than 11 years. So I'm sure with international stakes in the company, with the stock options in the company, and you know that they are just growing. At that time they were 400 million. आज की अगर मैं बात करूँ they are 550 million. आज से 4 साल बाद की बात करूँ तो they will reach 1 billion. I know that for sure. सही. Right? कैसे किया ये? फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर खोला लैपटॉप ठीक है. और मैंने आंखें बंद की और सेंड कर दिया. ओके. अच्छा. मुझे डर लग रहा है सोच के कि आगे क्या होगा. अब शाम को मेरे बॉस ने मुझे कहा कि भाई क्या हो गया, मतलब खैरियत तो है, मतलब यू नो तुम चाहो तो मैं उस ईमेल को डिलीट कर दूं, इट्स ओके. मैंने कहा नहीं यार आई थिंक इट्स द टाइम. ओके. इट्स द टाइम. उसने कहा सोच लो, तुम 1 हफ्ता ले लो, सोच लो. मैंने कहा नहीं इट्स द टाइम. मैंने 2 महीने का सुकून से नोटिस पीरियड सर्व किया. मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, आई विल मेक श्योर नथिंग हैपेंस. उसके बाद भी हो तो मैं अवेलेबल. ठीक है. बट आई नीड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन नाउ. सही. कुछ लोगों ने एतराज़ किया, कुछ लोगों ने इनकरेज किया. बहुत सारे लोग आपको वो कर रहे होते हैं ना कि तुमने सही डिसीजन नहीं लिया, ये क्या कर दिया. लोगों ने कहा तुम्हें पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तुम्हें पता है ये क्या है, तुम्हें पता है वो क्या है, इफ दिस नॉट वर्क आउट देन व्हाट्स गोना हैपन.
So then I went to the US. I made my own company there. Then went to Dubai. Made my own company there. And then अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि the product क्या है वो तो मुझे पता था. सही है. Right? I did not want to get into this small low price wars जिसके अंदर we are just making a logo or technology. We were talking about a good talent. और ठीक है. second मुझे ये लगता है अभी भी कि अच्छा आपको एक और बात बताऊं. पाकिस्तानी talent is one of the cheapest talent in the world. बिल्कुल. Right? सही. Pakistani talent is one of the smartest talent in the world. बिल्कुल. कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कौम को सही करनी पड़ेंगी. थोड़ी And I'll सी be करनी very होगी, honest. हाँ. Ethically, I should not say it, but I still say it. हमारे बहुत बुरे हालात हैं. बहुत बुरे हालात हैं. बिल्कुल. हम एक मिनट नहीं सोचते दूसरे को धोखा देने से पहले. And that has happened with me several times. And I'm like, यार, you should have asked me. I would have given this to you. बिल्कुल. Right? धोखा देना जरूरी नहीं था. But अच्छा एक तो ये होता है ना कि मैंने आपको धोखा दिया और मुझे बुरा लगे. दूसरा ये होता है कि मैंने आपको धोखा दिया and I'm so happy. Oh, I'm so smart. हाँ, सही. But then that taught me one more thing. कभी कभी ना जानबूझ के बेवकूफ़ बन जाना बेहतर होता है. सही. आप आंखें बंद कर लें. आपको पता है यार वो ये कर रहा है. कोई बात नहीं. Let it be. There is always something because you need to have your priorities set. Yes. आपको पता होना चाहिए कि यार should I spend 2 hours on this problem or should I focus on another opportunity which is there. Yeah. So that led to one client to another client to another client. और अब I usually do spend 2, 3, 4 months in the US whenever Okay. I get time. Okay. And we do develop a lot of business there. We do develop a lot of business in UAE. We Okay, develop a lot of mashallah. business in different parts of the world. But उसका जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि good talent if trained properly can do wonders. True. सही. And बट वो कहानी उस कॉल सेंटर की जॉब से स्टार्ट होगी वो मैंने सोचा नहीं था. नहीं सोचा था. और और उस- उससे पहले वो जो प्लेन्स क्रैश हुए थे वो उसके लिए रास्ता बना रहे थे. वो डायरेक्शन सेट हो रही है. That's it. शायद अगर वो प्लेन उस 911 नहीं होता तो I would have never come back. Right? या अगर FMCG में हो जाता I would have never thought about it. या अगर उस दोस्त का फोन उस वक्त नहीं आता बिल्कुल. तो शायद मैं वापस नहीं जाता. बट उससे पहले जिन साहब ने FMCG कंपनी खोलनी थी उनका पार्टनर नहीं भाग जाता तो भी मैं FMCG में होता. लर्निंग ये जो आपकी ये लर्निंग है ना आई थिंक दिस इज So I think everything is planned or I think that has made me more emotionally strong. True. हाँ ये है if you're developing that trait कि आप emotionally strong हो रहे हो तो I think there is nothing like that. क्या मैंने कहा यार जो भी हो रहा है ना there is something good. Good for you. और आप कभी कुछ जिंदगी बुरा होता है ना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ. हाँ सही. कि यार ये बुरा हुआ है ना मेरे साथ या मैंने कोशिश की मुझे नहीं मिला. मैंने कहा यार कुछ और है. इसमें बेहतरी है. अब वो क्या है कब है. एक और चीज सस्पेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. बिल्कुल. कहते हैं ना सरप्राइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हम लाइफ. उसको अनसर्टेनिटी बोल के उसको अंडरमाइन कर देते हैं बट यू आर राइट सस्पेंस इज द राइट वर्ड. मतलब आई लव इट. मतलब यू नो देयर इज समथिंग एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग हैज बीन सो ग्रेट एंड यू नो इन स्टोरी तो आई यू एम श्योर लुक उसके अंदर बहुत सारी दफ़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा. उसमें बहुत सारी दफ़ा ऐसे पॉइंट पे आ गए होंगे कि समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है आगे या ये क्यों कर दिया. आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट पीपल ओनली सी द गुड पार्ट. दे ओनली सी द सक्सेस व्हिच इज गुड. और कितने जाल फेंके तो जाके कोई मछली मिलती है. बिल्कुल. In the same way, tried so many times, failed so many times, but in the long run, I think if you are happy with what you have done, that's all that That's what matters. matters. So that is बिल्कुल. basic my story about what I have Very done. interesting story माशाल्लाह. Thank you. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके अंदर से तो और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं मेरे. Before I ask you about your experience at IOBM, it's something related to what you've just told me. अब क्या? What is your objective? What is the purpose? What I feel is that you have achieved, mashallah, a lot of what you had planned for. सही है? Alhamdulillah. तो आगे क्या? वो अब रियल पर्पस क्या है? वो रियल ऑब्जेक्टिव क्या है?
अच्छा, रियल ऑब्जेक्टिव आई थिंक एक तो ना ज़िंदगी की जो दौड़ होती है ना वो शायद ख़त्म होती नहीं है ना, इट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग एंड ऑल दैट. अब एक चीज़ जो मेरा अभी भी मानना है, और आई नो इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान को बहुत इम्पैक्ट हुआ है, सो द ओनली वे टू आइदर इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, टू get better quality work, or to get more money for the work that you are doing, is to work for international organizations. हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में आके ऑफिस नहीं खोलेगी, नहीं खोलती, बिल्कुल. राइट? सो the role that I want to play now is, if I could go to the companies, and I do that, and I tell them that, yeah, just hire 5 resources with us, 10 resources with us, 20 resources with us, and see the quality of work. And then you increase. Yes. As I said, we are, in terms of pricing, one of the cheapest resources in the world. बिल्कुल. टेक को हटा दें, अगर टेक को आप हटा दें तो they are still at par They can be with trained. Indian सही. resources. बट अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो शायद पाकिस्तान का मार्केट शेयर 3-4% से ऊपर नहीं है इन द ओवरऑल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री. ठीक है. राइट? आपके पास गिनी चुनी 4 कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और उसके अलावा बाकी कोई नहीं है. टाटा कंसल्टिंग सिर्फ इंडिया की एक कंपनी जो है ना, वो आपके पूरे इंडस्ट्री एक तरफ, उसकी एक कंपनी का 10-20% एक तरफ, एंड दैट्स ऑल इट इज. सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ, एंड आई थिंक इट्स आल्सो फॉर the IOBM graduates as well, which they can, if we can spread the word, and a lot of students, because again it has been more than 15-16 years, they partner up with me, or if they just want to do it themselves, I want to help them. I want to create my own competitors as much as possible. Sure. I don't mind as long as it's helping the industry overall. Sure. So if you are in the UK, if you are in the US, if you are in the Middle East somewhere, if you're in Canada, just think about how people sitting in Pakistan can work. और अब तो online working, Zoom sessions, these are so basic that you don't even think यार Zoom पे video on करना is not a big deal anymore. You know? So I think that's what I want to do. I am in touch with a lot of CBM alumni as well. I am in touch with a lot of students as well जो कि अब alumni ही हैं, and whenever they want to do something like that, they work with me. So I just want to make sure that everyone wins by the end of the day, and I think that's all it is. सही, माशाल्लाह. IOBM में कैसे आए? Like you were studying here, you were visiting faculty भी चला था, but इतने सारे साल, 16 plus years, and how was the entire experience? So CBM में कैसे आया, वो भी एक अल्लाह का करना था, right? First of all, तो जब आप करियर शुरू करते हैं ना, तो उस वक्त तो आपको ये होता है कि यार कुछ साथ में इनकम होनी चाहिए, राइट? सो आई ग्रेजुएटेड इन 2008. ठीक है. बट उससे पहले 2 वाक़यात हो चुके थे. ठीक है. एक लम्स वाला, ठीक है, ऑल पाकिस्तान बिजनेस प्लान कंपटीशन. आई स्टिल रिमेंबर द प्लेसेस जहाँ तस्वीरें लगी होती थी मेरी. अच्छा. और हम प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी थे, तो हमें पता था कि प्रमोट कैसे करना है, तो खुद ही करना है और अपने आप को करना है, तो इतना तो कर ही लेंगे. और सेकंड था the relationship with Miss Shanaz Meghani. Okay. She's one of the best persons I've ever met. Okay. And उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया. वो मुझे हाथ पकड़ के तालिब करीम सर के पास ले गई थी. अच्छा. I don't know, I want this guy to teach. अच्छा. और उन्होंने खुला मना कर दिया था. अच्छा. अच्छा. और उनका बिल्कुल, उन्होंने कहा यार I don't mind if he wants to teach during the weekdays. अच्छा. उन्होंने कहा no, he has to teach in weekends because he's working. ठीक है. उन्होंने कहा इसके स्टूडेंट इससे बड़े होंगे. And this happened. सही. उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, इखलाक साहब को एक सेमेस्टर के लिए ऐसा टीए दे दो. ठीक है. अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ठीक है. ठीक. अच्छा, वहाँ भी अल्लाह ने ऐसा किया कि इखलाक साहब के साथ एक सेमेस्टर किया, उनसे रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया, उनके साथ एक बुक लिख ली मार्केटिंग के ऊपर. उस टाइम में एक बुक लिखी उस वक्त. वाह. अच्छा. अच्छा. एंड फिर उन्होंने कहा यार आई थिंक यू कैन इजीली मैनेज. ओके. अच्छा, फिर क्या हुआ, एंड दैट हैपेंड. माय फर्स्ट सेमेस्टर, माय सेकंड सेमेस्टर, माय थर्ड सेमेस्टर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स वर ओल्डर देन मी. और अभी भी कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. अच्छा. उसी लॉट में से. और अब मुझे अंदाज़ा होता है कोई 4 साल मुझसे बड़ा है, कोई 6 साल मुझसे बड़ा है, कोई 8 साल मुझसे बड़ा है.
तो उस वक्त सूट और टाई पहन के आता था और ठीक मुझे है। रोज गार्ड रोकता था ठीक है कि तुम कि किधर भाई student स्टूडेंट किधर कार्ड जा दिखाओ। रहे हो। मैंने कहा यार अल्लाह को मानो। तो खैर, तो नहीं, वो जो स्टूडेंट्स थे वो सीरियसली लेते थे? अच्छा ये आई थिंक मुझे कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। नहीं हुआ प्रॉब्लम, सही है। Maybe I was not. I became little strict in the beginning. ठीक है। Not anymore. ठीक है। Because I think आपको ये make sure करना पड़ता है कि age is का कोई फायदा ना कोई उठा बात- सके. सही है, No? बिल्कुल। But I never had this kind of a problem. ठीक In है। fact, जब मेरा पहला semester हुआ तो मैं शराज में कहने का, are you paying people to give you a good feedback? I was like, no. I was like, how can you get this kind of a feedback? Because I have never seen this good feedback. अच्छा, And that was my first semester ओके। of teaching. That was in 2009. 2009 का जो फॉल था was I was a TA ओके, और 2010 के स्प्रिंग से I started teaching. ठीक है, सही। खैर फिर 2012 में I was like यार कुछ अपना करना है, कुछ ठीक। अपना करना है. So I launched my own course in here, अच्छा, marketing analytics. ओके। अच्छा सही। उस पे फिर इखलाक से मिशनाज में का ओके डू इट. तालिब साहब ने कहा क्या हो गया भाई ये. मैंने कहा देखिए दिस इज मार्केटिंग एनालिटिक्स सही। बिकॉज मार्केटर्स फॉर सम रीजन थिंक वी डोंट लाइक नंबर्स दैट्स व्हाई वी वांट टू डू मार्केटिंग. दैट्स सो रॉन्ग. That is so wrong, बिल्कुल। और वो नहीं ज्यादा जगह पे पढ़ाया जाता, मतलब सिखाया भाई नहीं आप जाता था। एडवर्टाइजिंग कर लो ना या बिल्कुल। आप कोई क्रिएटिव कर लो बट मार्केटिंग विदाउट नंबर्स इज नथिंग. Is nothing, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा एक काम करो अब मैं तुम्हें क्या मना करूं. एंड ही आई थिंक ही लाइक्स मी एज वेल एंड ही लाइक्स मी अ लॉट. अल्लाह का शुक्र है. तो उन्होंने कहा एक काम करो एक सेमेस्टर कर लो. सही है, अगर उसके अगले सेमेस्टर 5 बच्चे भी आ गए ठीक है, तो ठीक है सही, वरना फिर ये कोर्स दोबारा ऑफर नहीं होगा. ठीक है। अगले सेमेस्टर 1 मिनट के अंदर कोर्स फुल. माशाल्लाह, ओके। वो दिन है और आज का दिन है. दिस कोर्स इज यू नो आई एम टीचिंग दैट कोर्स. अच्छा, इसके बीच में मैंने कोर्स मैं मार्केटिंग एनालिटिक्स के साथ को कैपस्टोन भी किया ये ठीक सब है। कुछ भी किया बट सही। मार्केटिंग एनालिटिक्स हैज़ बीन माय थिंग बिकॉज इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग the numbers and how different industries have different metrics ठीक and है। how you can quantify things ठीक to है। make sure that you improve चाहे वो customer service हो चाहे वो segmentation हो positioning हो targeting हो कुछ भी हो. ठीक है, So that has been my relationship with IOBM. Okay. and एक और चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी है यार करो वो जिसको करने में मज़ा आता मज़ा हो हो। वरना have the courage to leave. बिल्कुल। ये जो You asked me courage- one question. Sorry आप कहिए. नहीं, ये जो करेज है ना टू टेक द रिस्क एंड देन टू स्टेप अवे फ्रॉम दैट, वो बड़ा मुश्किल है. वो आई थिंक नॉट एवरीबॉडी कैन टेक दैट रिस्क. I think if it all depends on your mindset. अगर आपको लगता है कि यार रिस्क देने वाला अल्लाह है तो ये सारे सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं. ये अगर आपको लगता है नहीं मैं जो करता हूँ ना उस वजह से मुझे मिलता है ट्रस्ट मी इट नेवर हैपेंस. आई हैव सीन सो स्मार्ट पीपल नॉट डूइंग वेरी वेल एंड आई हैव सीन सो स्टूपिड पीपल डूइंग रियली वेल. बिल्कुल सही. ठीक है. तो और मैं अपने बारे में भी ये कहता हूँ आई थिंक ये माँ बाप की दुआएं हैं या कोई अल्लाह को अच्छा काम लग गया होगा. आई डोंट थिंक इट इज एवर लाइक दैट के because of me I am getting that because trust me there have been times जब मैंने पागलों की तरह मेहनत की and I did not and get the didn't work result and there have been times कि मुझे फ़ोन आता है कि भाई I want this and that is like $50,000 in profits. I was like what the hell but you just get it like that. सही, बिल्कुल. So maybe there is a time and I don't know वो किसका टाइम कब आता है कैसे आता है. तो बट मैं कंसिस्टेंसी देख रही हूँ दैट यू हैव बीन वर्किंग हार्ड. आई थिंक दैट has been very consistent, that you're not just sitting idle कि अच्छा देखा जाएगा. You're giving your best, you're working hard, and then I guess the ये results follow. I don't know if it's a weakness or a strength I don't know but I make sure कि यार उससे बेहतर हो सकता है उससे बेहतर हो सकता है. अब मैं कल से सोच रहा हूँ मुझे यहाँ पे आना है मैं ऐसी कोई बात कर दूँ जो किसी को हेल्प कर दे किसी हाँ. को बता दे and otherwise it's very easy to just come and talk right बिल्कुल, बिल्कुल. but if you're not creating value by the end of the day I don't think you should be there. बिल्कुल. And that's what I have done for myself. That's what I have done that's what I tell everyone. तो जो teaching है ना हाँ. teaching मैं इसलिए नहीं करता because maybe at that time that was 10-20% of my compensation. सही. Right now it's not even 0.5%. हाँ, सही, right? बिल्कुल. So it's not the money which is motivating anyway. बिल्कुल. But अब मुझे ये होता है कि यार शायद उस वक्त मुझे कोई वो सब कुछ बता देता जो मैंने खुद गिर के सीखा है. बिल्कुल. और आज आप किसी मेरे स्टूडेंट से पूछेंगे ना
सो दे विल से कि यार आई ट्राई टू इनकलकेट ऑल, मैं सोच कर आता हूँ कि आज ये 2 बातें एक्स्ट्रा मुझे लोगों को बतानी है, एनालिटिक्स तो पढ़ाना है बट ये 2 बातें बतानी है, और वो 14 हफ्तों में 28 बातें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे लगता है कि यार maybe some people will take it seriously, some people will not, but those who will inshallah will get benefit out of it. एक दो भी सीख जाए तो आई थिंक योर वर्क इज डन, एक दो भी उससे लर्न कर ले, that's all. अभी तो मैंने क्वेश्चन था मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस पे, आई थिंक वो बहुत सारे हैं, वो अभी मैं पूछती जाऊंगी. मैंने आपका देखा था यू आल्सो स्टडी एट मिशिगन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और फिर आपने यहाँ से IOBM से पढ़ा. व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू फेल्ट कि हाँ ये चीज़ काश पाकिस्तान में होती, या ये मैं यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहता हूँ? Okay, तो अच्छा, so again grew up in Karachi, then studied in Oman, then studied in the US, then came back to Pakistan, then studied here. So जो मुझे लगता है, and I don't know, I think it's more practical approach towards things. ठीक है, सही. अब अगर मैं हाई स्कूल की बात करूँ, आपको पता है वहाँ पे ग्रेड्स किस किस चीज़ों पे मिलते हैं, and I'm talking about 2001, 25-26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं बता रहा हूँ. ख़वातीन जो होती हैं, they can opt for a course जिसमें बच्चा पालना पड़ता है. ओके, ठीक है. It's like a doll सही है. जिसमें CD लगी भी होती है, बट वो किसी को भी रो जाएगा, और आपके पास एक हाथ में चीज़ होती है, तो आपको गाड़ी का ऑयल कैसे चेंज करना है, ठीक है, आपकी फिजिकल एजुकेशन, इन सब के ग्रेड्स होते हैं. सही. नॉट कन्फाइनिंग पीपल के यार तुम ग्रेड 8 में हो, अब बताओ डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे. अल्लाह का शुक्र है I was not there when I had to make this decision. Exactly, I have my kids and they're like I don't know कि मैंने क्या बनना है, but you know this exactly. मतलब ग्रेड 9 को बेचारे को अपना नहीं पता, गरीब को कि तुमने किधर जाना है, क्या डायरेक्शन, तो बेटा साइंस ले लो, ऑप्शंस ओपन रहेंगी. That's it. That is it. And that led to one more venture that we started. That was by the name of Reveal Pakistan, and it was a psychometric assessment. ये हमने 2010 में start किया था, me and a friend Ahmed Saya. Okay. And what we did was how you can make your how you can choose the right kind of careers based on your personality, your inclinations, your strengths, your weaknesses, so on and so forth. Okay. And we have implemented in a lot of the schools as well. So students who really want to learn more about what they should do, not because अच्छा एक और चीज़ है ना, पैसा उस हर जगह पर है जहाँ पर आपकी कॉम्पिटेंस दूसरों से ज़्यादा है. बिल्कुल. ये सब एक स्टूपिड बातें हैं कि यार अगर इंजीनियर बन जाओगे तो ज़्यादा कमा लोगे, या वो बन जाओगे तो कर लोगे. एक अच्छा रेस्टोरेंट चलाने वाला भी करोड़ों में कमा सकता है. चाय वाला का तो सुना ही होगा आपने, जो दुबई में बड़ा मशहूर हो गया. देन एट द सेम टाइम maybe it's an architect, maybe it's an artist, it can be anyone, right? So you need to know, and that's why I said I don't work anymore. I do what I love to do. So चाहे वो consultation हो, चाहे वो training हो, चाहे वो students के साथ वक्त गुजारना हो, and sometimes people ask me कि यार सैटरडे का दिन मिलता है सिर्फ, you know, if you enjoy, then Sunday सुबह 8 बजे उठ के आना होता है. It's like यार, but if everyone thinks like that, then who is going to pass on the message? So coming back to the same question, I think practicality is something which can be enhanced, and not talking about IOBM, I'm talking about the overall education in Pakistan. अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है 90% of the cases में जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है. बिल्कुल. अच्छा, वो क्यों बनता है? बिकॉज हमारे माशरे में टीचर्स को जो पैसे दिए जाते हैं ना, वो पीनट्स भी नहीं होते. बिल्कुल. तो और दैट इज़ अक्रॉस द बोर्ड. आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी को देख लें, आप गवर्नमेंट को देख लें, आप प्राइवेट को देख लें, तो पैशन तो होता है, बट यार आई नीड टू डू व्हाट आई नीड टू डू, राइट? सो इफ आई नो माय मार्केट वर्थ इज ABC या 10 रुपीस, I'm not going to work for 1 rupee. I'm going to work for 10 rupees. Right? So cream सारी कहीं और चली जाती है. Maybe it's the practical approach शायद इसलिए नहीं आती है कि second tier या third tier लोग आ रहे हैं, first tier नहीं आ पाते because first tier को शायद आप afford नहीं कर पाते. नहीं कर सकते, बिल्कुल. तो and that's why I think it's even more important. So
I have a lot of good friends, like Rahil Yusuf is a very good friend. Malik Kabani is a very good friend. They all are doing really well in their professional lives, and whenever we meet together, we talk about the same thing. कि यार हम कम से कम कुछ वैल्यू क्रिएट कर दें, बिल्कुल. तो हम आते हैं 2-3 घंटे गुजारते हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर देते हैं. I think that's just giving back to the society and especially to your own institute, which really took care of us when we wanted. This is another important thing which is very relevant. My baby cousin, he's not so young anymore, usko jo hai recently he got funding for his AI based news in UAE, and he got a funding of $2 million US dollars. और मैं जो है वो है जो मूवीज में साइड पे लेके खड़े होते हैं ना बैनर, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एआई आ गया, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो व्हेन डू यू थिंक हमारी जो जॉब्स हैं वो कब रिप्लेस हो रही हैं? बिकॉज डू यू थिंक ऑल द बिग फर्म्स आर नाउ डेवलपिंग देयर एआई सिस्टम्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो अब वॉर है वो ये है कि किसका बेहतर एआई सिस्टम है, ठीक है, इवेंचुअली वी आर लीडिंग टुवर्ड्स दैट. तो योर ट्रेनिंग, माई टीचिंग, where do you think, where do we stand? Okay. वो कहते हैं ना आपके पास हमेशा 2 पर्सपेक्टिव होते हैं. या तो आप ग्लास को आधा भरा हुआ देख लें या खाली देख लें. ठीक है ना. तो बहुत सारे लोग आई थिंक कंसर्न्ड हैं कि व्हाट्स गोना हैपन विद एआई एंड इफ माय जॉब विल बी देयर और नॉट. मुझे ये बताएं कि जब पहले फाइल्स बनती थीं और टाइपराइटर्स होते थे, फिर कंप्यूटर्स आ गए, थिंग्स चेंज्ड, तो लोगों ने कहा यार ये सारे लोग क्या करेंगे, फाइलिंग वाला क्या करेगा, ये क्या करेगा, पोस्ट ऑफिसेस ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ईमेल्स जो हैं they'll be there and all. फिर हमारे पास आया कि यार अब एआई आ गया है, व्हाट्स गोना हैपन. सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, there will always be something new. Those who adapt will be there. Those who are stuck, like Nokia, कि यार मैं तो ऐसे फ़ोन बनाऊंगा जी, they'll not survive in the market. So क्या हमारी जॉब जाएंगी? I think जाएंगी तो नहीं, but maybe impact ज़रूर होंगी in a way कि शायद अब रिसर्च का लेवल, शायद अब कंटेंट का लेवल, अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी. For everything that you do, either you are a speaker or you are a teacher or you are whoever you are. Virtual learning शायद और improve और बेहतर हो जाएगा, right? अब तो जैसे कॉल सेंटर इंडस्ट्री is scared because tier 1 calls जो है वो AI आराम से ले सकता है और उसके जवाब दे सकता है, and it's better, it's working 24/7, it's scheduling calls, it's emailing. But I think जो generalists होते हैं ना, they will survive in the market. Maybe you cannot be smarter than the AI. But if you have the right mindset, I don't think you have to worry about it because kind of jobs will change. For example, एक ज़माना था कि हम कहते थे FMCG हमने पहले बात की, फिर हमने कहा यार सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. एक ज़माना था NED के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग उनको दिया जाता था, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पास नहीं कर पाते थे और वो सेकंड ऑप्शन होता था कि चलो यार ये कर लो. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, बिल्कुल, है ना. बट अब हम ये देखते हैं कि यूएस में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को फायर किया जा रहा है. बिल्कुल. व्हाई? बिकॉज Claude and all these can do better programming, faster programming, and now what can be done by 10 people can be done by one person. Yes. But you can be that one person. One person, yes, exactly. So I would look at it that way. Faster, I guess. 100%. मैंने खुद अभी 3 दिन की extensive AI training की है. अच्छा. Not because I need it right now, because I was like, yeah, I don't want to be someone who has no idea what happened. What is happening. Right? So from as simple as prompting to making your things, and it has helped me so much. Trust me, the level of research, the level of work, जिसमें मुझे 3 घंटे लगते थे, अब मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ, आधे घंटे में कर सकता हूँ. It makes you more productive. So I think that's how I look at it. बिल्कुल. जब अभी बात कर रहे हैं ना आप, जैसे जो शिफ्ट आया है, पहले आई वॉज एट दैट टाइम जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ NED में, तो मुझे लगा ना मैं तो बस क्या चीती हूँ और मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया इलेक्ट्रिकल में. बट देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट
in the requirements as well as the behavior of the students as well. So you've been teaching for the past 16 years. मैंने भी उसी टाइम में 2008 2009 में पढ़ाना शुरू किया था. तो there has been a major shift. So how do you deal with that? Do you adapt? या आपका कोई behavior change हुआ है? जैसे आप कह रहे हो पहले आप you were more strict and now, तो वो how has it changed over the period of years? I think it has changed in a better way. Uh, now people ask questions. Yes, exactly. You know? Yeah. और मेरा पहला जो I hate talking to walls. I was Same. like, yeah, if you're not speaking, then I don't want to be Same. there because my I only can motivation understand. is you need to contribute. Otherwise, Yes. you don't belong here. बिल्कुल बिल्कुल तो अब लोग सवाल करते हैं. करते हैं. Yes. अब लोग चैलेंज करते हैं. बिल्कुल. तो पहली क्लास में अगर आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया हाँ. ना, और आई थिंक पहले इट वाज मोर ऑफ आई एम हियर एंड यू आर देयर. Yes. आई थिंक अब वी ऑल आर टुगेदर Yes. स्टडीइंग एंड You're अंडरस्टैंडिंग also एंड learning टॉकिंग from अबाउट them इट as well. ऑलवेज. It's a two-way procedure now. मैंने बिल्कुल. फार्मा के बारे में जितना सीखा है आज तक काम नहीं किया. आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, यू टॉक अबाउट एनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात सही. कर लें, बैंक्स की बात कर लें. सो I think it's just letting people speak, and they really want to speak. And with the new generation now coming in and all, yes, shayad discipline is one thing Yes. which वो थोड़ा सा उसके ऊपर we काम need करना पड़ता है. to work on. बिल्कुल, बिल्कुल. But in terms of being very vocal, I think they are Yeah. there. So it's just about They have a lot of talent. I think they have more exposure than we had. ज़्यादा उनके पास exposure है तो वो कुछ excess of everything is bad and it can be good as well. तो I think वो Absolutely, उसको जो balance में लेके चलना होता है, that is job of a teacher. वो उसी मैं अब next question पे आती हूँ कि Gen Zs, ठीक है, हमारे साथ हर वक्त कंपैरिजन हो रहा होता है. हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, असल तो हम होते थे. सो डू यू थिंक इज दैट अ फेयर कंपैरिजन? I think it's not fair. It's यार not हमें fair. क्या पता था 18 है साल की ना? उम्र में, 16 साल की उम्र में हम क्या थे, सही मुझे बात बताएं. है. हाँ. We आप were तो फिर कोई एक्सपोजर exactly लेकर आ गए थे बाहर से. कुछ नहीं पता था. सही. लोग बोलते थे गोल घूम के इधर चले जाओ, हम गोल घूम के उधर चले जाते थे. सही. पूछते रहते पैसे ही ना चले जाएं. सही. हाँ. You know? So I think it's not fair. और जब आप इसको देखते हैं ना, आपके दादा दादी नाना नानी से आप बात करेंगी ना, तो वो भी कहेंगे हमारे ज़माने में जो लोग थे ना, तुम लोग तो ये थे. बिल्कुल. हम यही चीज़ जेनजीज के बारे में कह रहे हैं, और शायद जेनजीज यही चीज़ अपनी जेन अल्फा और बीटा और व्हाटएवर के बिल्कुल. बारे में यही बात करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दे आर डम और दे आर जस्ट डिफरेंट. यस, एग्जैक्टली. दैट्स इट. बिल्कुल. वो सो यू नीड टू नो हाउ टू डील विद पीपल हु आर डिफरेंट. दैट्स इट. यस, एग्जैक्टली. बिल्कुल. मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था 2008 में, आई वाज 22 इयर्स ओल्ड, 21 इयर्स ओल्ड, और वो मैं पूरा एक ऐसे भर के दुपट्टा और ग्लासेस लगा के जाती थी, बिकॉज अगैन आई वाज टीचिंग टू एमबीए स्टूडेंट्स. Okay. और वो उनको वो सीरियसली उस तरह से नहीं लेते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू से कि अच्छा ये यंग सी है और आगे बढ़ाने, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग देम, देन यू नो देन दे Yeah. टेक यू सीरियसली. अभी इट्स डिफरेंट. इफ यू नो दे वांट टू रिलेट कि हाँ अच्छा हमारा टीचर जो है वो हमें अंडरस्टैंड करता है, वो हमारे सेम लेवल पे हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है. तो आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस एज वेल, कि पहले आपको वो अपनी अथॉरिटी डेवलप करनी पड़ती थी. नाउ यू हैव टू बी देयर फ्रेंड, मेंटोर. अब वो वाला फैक्टर आ गया. स्किल वर्सेस डिग्री अभी ज़्यादा स्किल ऑल द वे, ऑलवेज. खुद तो आपने इतनी सारी डिग्रीज ली हैं. बट कोई पूछता नहीं है यार मुझसे. बट देन अगेन मुझे खुद बताना पड़ता है. पता है मेरा जीपीए क्या था? नो वन आस्क्स फॉर दैट. इट्स हाउ यू परफॉर्म, and how you perform depends on the skill that you have. Because I say this to my students all the time, इस डिग्री की कोई औकात नहीं है. Because the moment you step in the real world, it's how you create value, and that's it. You have a 4.0 GPA, you cannot create value. No one needs you. No one wants you. बिल्कुल. तो बट स्किल का जो रसीदें होती है ना, वो आपकी डिग्री होती है. डिग्री होती है. ठीक है, तो रसीदें होना ज़रूरी हैं, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे इट्स योर स्किल, इट्स योर एटीट्यूड व्हिच मेक्स ऑल द करा डिफरेंस. देती है आपको डिग्री. व्हाट डू यू थिंक? Till now, yes. Maybe after 5 years, no. Because Yeah. now AI systems इतने strong हो गए हैं. बिल्कुल.
पहले क्या होता था, भाई मैं 25 लोग से ऊपर का इंटरव्यू नहीं कर सकता एक दिन में, है ना, तो एचआर बोलते थे काम करो पाकिस्तान के टॉप 50 लोग ले आओ, तो डिग्री आपकी एंट्री करा देती थी। बिल्कुल, हाँ। अब एआई एवेल्युएशन सिस्टम्स आ जाएंगे, हम बोलेंगे काम करो 5 लाख लोग को एवेल्युएट करो और फिर 20 लोग लेके आओ, तो फिर वो डिग्री जो आपको टेबल तक ले जाती थी ना, शायद वो भी उस हद तक नहीं ले जाएगी, बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग ए चांस टू बी इवैल्यूएटेड। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। So that is the only difference. ये है। मैं इतना इंटरेस्टिंग है, अब बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे अगेन हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन है, आई विल बी इनवाइटिंग यू अगेन, मैं अभी से ऑन एयर आपसे वादा ले रही हूँ, ठीक है? व्हाट इज योर की लर्निंग फ्रॉम लाइफ? Life is can be as easy as you want and can be as difficult as you want. I think it's you who has to plan for it. तो कुछ चीज़ें हैं आई वुड वांट टू टेल यू जो मैंने सीखी हैं, जो मुझे लगता है कि आप अगर करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। एक तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी ना जानबूझ के बेवकूफ़ बनना बेहतर बनना पड़ता है। इट्स ओके यार, इफ़ यू थिंक यू आर स्मार्ट डू इट, आई एम नॉट गोना इवन बॉदर अबाउट इट। ठीक है। सेकंड, वो जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, हमारे माशरे में हम वो बातें करते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हुकूमत को ये करना चाहिए था, उससे पहले वाली को ये करना चाहिए था, ट्रंप को ये करना चाहिए, उसने ये कर दिया। अरे भाई, जो तुम्हें करना चाहिए वो तो करो भाई। एक रिक्शे वाला भी बैठ के ये बातें करता है कि यार हुकूमत में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग everyone's job is respectable, but you are focusing on things which are not in your control, and that is the recipe for disaster. Yes. तो मेरे साथ कोई बात करते हुए कहते देखो, कैन वी कंट्रोल इट, इफ नॉट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ठीक है। आप देखें ज़िंदगी में आप अपने आप को किस तरह से, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न ऑलवेज टॉक्स अबाउट दैट। सो अगर किसी ने प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई पढ़ी हो या 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी हो, you would know that changes your life. Second, I think even though I am into a lot of things, I always try my best to make sure that I'm managing 4 pillars of my life. Okay. And they are? Physical self. ठीक है. If you're doing everything but you're not taking care of your physical self, ठीक है. that's not good. Foundation ही. एक बार अचानक से झटका लगेगा और फिर आपको पता चलेगा कि यार it's too late. सही. Right? So maybe 30-40 minutes every day to yourself. And again, we'll not get into details about क्या क्या आप कर सकते हैं, but mental self, which is always learning. Yes. That is a stupidity कि यार डिग्री मिल गई और उसके बाद ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सब तो obsolete हो गया यार। बिल्कुल, है ना? Third is your social self. Be connected with the right kind of people. Not anyone who just becomes your friend. You have to be smart enough to have the right kind of people in your life. आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है. Have good mentors in your life. आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है. And चौथा is spiritual. And it's not what I am saying. Again, अगर हम 7 habits of highly effective people की बात करें या अगर आप overall productivity पे बात करें तो Robin Sharma has done a lot of work. Stephen Covey has done a lot of work. एक Christianity के बाबा हैं, एक हिंदुइज्म और उसके बाबा हैं, और एक यू हैव इस्लाम. सो इफ यू लुक एट ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, यू विल नो दैट उन सब के अंदर एक चीज़ जो आपको नज़र आती है ना, वो ये आती है कि यार समवन हु इज सक्सेसफुल इज ऑलवेज समवन हु इज मैनेजिंग themselves, and by managing you mean physical, mental, social and spiritual. Otherwise you cannot. I think एक और चीज़ होती है ना, you see what you want to see, not what is reality. अगर आज मैं आपसे कहूँ कि let's try to see what is blue in this room, तो हम बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो शायद नहीं देख रहे थे. या आपके जहन में आया मुझे गाड़ी चेंज करनी है, आई लव कार्स, आई चेंज कार्स फ्रीक्वेंटली, आई लव कार्स. ठीक है. तो कोई भी नई चीज़ आएगी ना मेरे जहन में होगी, रोड पे नज़र आ रही होगी, मैं देख लूँगा. ठीक है. राइट. सही. मे बी माई वाइफ वुड नॉट लुक एट दिस, माई वाइफ वुड लुक एट something else. You would look at something else. My friends would look at something else. So you see what you want to see. Yes. So mindset plays a very important role in your life. Yes. And एक चीज़ जो मैंने हमेशा से नियत की है ना, वो ये की है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला हाथ. कोशिश करो और दुआ करो कि हाथ हमेशा ऊपर वाला रहे. ठीक है ना? बिल्कुल. And trust me, when you think like that,
थिंग्स विल चेंज इन सच अ वे कि आपका हाथ हमेशा ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला रहेगा ही नहीं. हमारा कौम का मसला ये हो गया है कि हमें ये लगता है कि मैं यार आपसे कैसे मांग लूँ या आपसे कैसे ले लूँ, यार क्यों चाहिए मुझे आपसे. आई शुड क्रिएट वैल्यू सो मच कि आप मेरे पीछे पड़े कि यार टेक $5,000 for 1 hour and please tell me how this is done. Rather than me trying to be after, and it's not just money, it's the respect, it's anything and everything. बिल्कुल. और I think no matter wherever you are, आपको नहीं पता दोबारा उस बंदे से कब मुलाकात हो जाएगी. सही, बिल्कुल. So don't ruin your relationships, especially when you are leaving. अगर आप कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ें तो उसमें तो ये भी है कि अगर मियाँ बीवी में तलाक होती है तो भी लीव ऑन अ गुड नोट. हम तो यहाँ रिजाइन करते हैं और उसके बाद वो 1 महीना साहब का एटीट्यूड ऐसा होता है. हाँ, बिल्कुल. और एवरीथिंग यूनिवर्सिटी छोड़ के जाने वाले हैं तो अब तो हमने बस हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, you know, वर्क प्लेस पे हैं तो बस अब तो हमने छोड़ के चले जाना है. तो वो एग्जैक्टली. एंड दैट इज वन थिंग दैट आई फील कि यार जो आखिरी महीना हो ना उसमें तो आप डबल मेहनत करो. सही. कि उसको लगे कि यार पता नहीं दोबारा बहुत बड़ा लॉस हो गया. और मैंने ये देखा है कि जब आप किसी के साथ ये करते हैं ना तो आपके साथ भी वैसा ही होता है. तो वन ऑफ माई एम्प्लॉई इज लीविंग एंड ही इज लीविंग ऑन सच अ गुड नोट. ओके. कि उसने मुझे रात को 2 बजे भी फोन करना है ना कि आई वांट टू कम बैक. सही है. मैं कहूँगा यू आर कमिंग बैक फ्रॉम टुमारो, विल डिसाइड थिंग्स लेटर. ठीक है. सही. राइट. सो माई फर्स्ट जॉब BASF केमिकल्स, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट आई विल स्टिल से इट. उस वक्त MBA किए हुए पहला साल, कोई बहुत ना पैसे थे ना कुछ था ना अकल थी. माई बॉस Samreen, she was like, यार you have done such a good job in the last 1 month. मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ करके तुम्हें रोक लूँ. And that was such a बड़प्पन of the company as well कि जब मैं छोड़ा उन्होंने मुझे 1 और महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी थी. Okay. And I was like, why this is? और उसी दिन लास्ट डे, ये भी नहीं कि 2 महीने तक जगह खिलवाए कुछ नहीं. And I was like, उन्होंने कहा यार what you did in last 1 month, okay, no one does it. सही है. So we just wanted to do our part and make sure that we do this. And I never did this for any compensation or anything because I was leaving and I had no idea कि plans of coming back to the textile marketing or textile chemical industry because that's not what my thing is. बट आज भी अगर वो मुझे मिलती हैं और मुझे काफ़ी लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि वो आज भी आपकी एग्जांपल्स देती हैं दूसरों को. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच यू गेट. आई थिंक यही है ऑब्जेक्टिव, यही होना चाहिए कि आप जहाँ भी जा रहे हो यू लीविंग अ पॉजिटिव मार्क देयर एंड देन यू नो दे रिमेंबर यू इन गुड. फिर अब कभी भी आपको वापस मुड़ना हो कुछ हो तो ये नहीं कि अब पूरी कश्तियाँ जला कर आए हुए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते. अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, टाइम की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है. एक चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, मैंने आपका देख रही थी तो आपने एक ट्रेनिंग सेशन था जिसमें था कि यू वर गिविंग ट्रेनिंग ऑन हाउ टू डिटेक्ट लायर्स. Okay. This is just one thing that I want to Dawn add का था, before we yeah. move. Yes, exactly. Dawn का था, चाय टोस्ट और होस्ट का था. और उसके अंदर जो है तो मैंने कहा कि I really want this for our students, for everybody who's watching here. कि ये just give us you know थोड़े से tips and then we'll go towards the end of the show. अच्छा, आपने कभी देखा है कि माँ फौरन बता देती है बच्चे के बारे में कि देखा है, मैंने अपने घर में देखा है. You know, you can tell. Yes. कि यार वो बोल कुछ रहा है बट है कुछ और. Yes. राइट. तो लाई डिटेक्टर्स के बारे में भी सुना होगा आपने, बहुत सारे होते हैं. मुझे नहीं पता चलता कि वैसे कौन झूठ बोल रहा है. अच्छा, I can't detect. अच्छा, आप अगर किसी से पहली बार मिलती है ना तो शायद बताना मुश्किल भी है. I'll be very honest. Why? Because you don't know how this person acts. Yes. आपको नहीं पता मेरी आंखों की मूवमेंट क्या होती है, मेरे जेस्चर्स क्या होते हैं. बट एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इंसान को बनाया गया है सच बोलने के लिए. ठीक है. या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जो सोच रहे हैं और जो कह रहे हैं तो आपका माइंड एंड बॉडी एंड एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. ठीक है. You know, it's just like me saying, oh, I'm very confident. No, so my body language and what I'm saying, these are two different things. Problem ये होता है कि whenever आप
झूठ बोल रहे होते हैं या आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसके लिए आपका माइंड वो नहीं कह साथ रहा, नहीं दे रहा, ठीक है, तो कोई ना कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, कुछ लोगों में आंखों का डिस्कनेक्ट हो जाता सही है है, कि ठीक वो है, आंखें नहीं मिला नहीं पाएंगे, सही है, ठीक है, राइट. हाँ, कुछ लोगों में लड़झड़ाहट आवाज़ में जो है ठीक वो है, आ जाती है. सही है, कुछ लोगों को पसीना आ जाता है, कुछ लोग हैंड मूवमेंट चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द ओनली वे. सो उसका रास्ता ये होता है कि आप ऑब्जर्व करें एंड बॉडी देन यू लैंग्वेज, टॉक टू पीपल अबाउट नॉर्मल थिंग्स कि ठीक हाउ इज़ है, द वेदर, सही, हाउ CBM, हाउ इज़ सही, योर स्टडीज़. ठीक है, And then you ask what you want to ask, and if you think anything changed, it means the body and mind are talking about कोऑर्डिनेशन में different नहीं है, things ठीक है, altogether. सही है, ठीक. So that is the only way, because yes, there are some trained people who can do this, But that's what I was getting to. right? That's what I was So you getting will to. always have some people Exactly. जो शायद दिखेगा नहीं. हाँ, अब कुछ लोग के चेहरे पे सब कुछ दिख भी जाता दिख है जाता और है, कुछ हाँ. लोगों पे नहीं हाँ, दिखता. वो मेरे चेहरे पे सारे सब कुछ आ जाता है, झूठ बोलना, मजाक करना, सब कुछ, you know, in a So, second it's so there. जैसे मुझे लगता है मुझे you cannot tell if I'm happy or sad or mad or whatever, Okay. right? But maybe शायद जो मुझे बहुत करीबी जानते हैं, दिख अगर जाए. मैं कोई ऐसी बात कहूँगा जो शायद मैं सच नहीं बोल रहा, सही, वो नज़र आ जाएगा. नजर आ जाएगा. शायद my eyes will tell, my accent will tell, ठीक है. या जिस जिस लफ्ज़ों का आप इंतखाब करते हैं ना, हम्म, दैट्स डेटा साइंस, राइट. हम्म, यू विल नो कि यार ये इस तरह के वर्ड्स उस वक्त इस्तेमाल करता है जब ये झूठ जब बोल ये रहे हैं. इस फॉर तरह से एग्जाम्पल, लिखा. कसम से मैंने आज तक झूठ नहीं बोला ठीक यार, है. कसम. कुछ लोग कसम खाना शुरू कर देते हैं. सही है, सो ठीक देयर आर है. लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू सी, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज अदर देन द नॉर्मल दैट दे आर यूजिंग. फाइन जो है वो चेंजेस आ Yes, रहे हैं, वो yes. then you need to learn how to detect that as well. एब्सोल्युटली. So it's very interesting. मुझे लग रहा है कि हमें एक और सेकंड सेशन इंशाल्लाह, करेंगे very soon. इंशाल्लाह. Coming towards the end for this one, any message that you want to give to the students? आपने बहुत सारी चीज़ें बताई and you know there were a lot of things that they can learn from, I can learn from, but any specific message that you want to give to the students? बातें तो बहुत हो गई. आई थिंक लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. Yes. You always have a choice to be below average or above average, to create more value or less value, सही. to be at your best or not. वो स्टीव जॉब्स की मैं हर एक बार हमेशा एग्जांपल देता हूँ. उसके कमेंट्स में स्पीच थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की. वो कहते हैं यार, if today is the last day of your life and you ask yourself, have you done everything that you wanted to do? And if the answer is no, you need to change something, because that Yeah. last day can be any day. Any day. So you need to know if this is what you really wanted to do. मुझे बहुत लोग कहते हैं कि सर उस वक्त तो शायद आपको मौका मिल गया और हम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते या हम ये नहीं कर सकते. I'm like, start on the side. You know, जब तक एक और ये खैर बड़ा इंस्टाग्रामिश है, बट खैर वो कहते हैं ना, एक बंदा है वो अब नई गाड़ी खरीदता है और वो रोड पे निकालता नहीं है. उसका दोस्त उसके पास जाता है, कहता है यार तुमने गाड़ी खरीद ली, कब निकालोगे? तो वो कहता है कि यार मैं उस दिन निकालूंगा ना जब सारी सड़कें बन जाएंगी कराची की और सारे सिग्नल ग्रीन होंगे. सही है. तो उसने कहा भाई तुम रोड पे निकलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ग्रीन है कि नहीं है? सो सही. टेक योर चांसेस. Yes. Yes. You will get some red lights, Yes. that's fine. That's right. But you will get बिल्कुल. some green lights and you'll be proud that you went out there. Yes. Yes. हर Right. बॉल पे छक्का नहीं नहीं लगेगा. लगेगा, बिल्कुल. हमारे यहाँ again this social media talks about the good things that are Yes. happening in everyone's life. Yes. Maybe that's 10% of what's happening in their life. Exactly. 90% is hidden. Exactly. So take your chances. Do your best. There is always something there. ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि आप कोशिश करें और आपको ना मिले, ये हो ही नहीं सकता. Yes. I agree. And I think on this note I would want to end. Thank you so much, Naveed. It was very interesting. Thank you. I had a lot of fun. I'm sure everybody who's watching this, they got to learn a lot. And मुझे अब seriously दिल कर रहा है that I need to take your sessions seriously because this thing ये बड़ी attractive चीज़ बताई है कि you how to control your emotions and how not to get angry and how to control yourself in difficult situations. So again, it was very interesting. Thank you My so pleasure. much. Thank you. So much for coming to the show. And I had a lot of fun. I'm sure you guys also will find it very interesting. That's all for today, and I'll see you in the next episode. Thank you. Allah Hafiz.